Hello students, in my previous video of this formal letter writing, I have discussed with you the format of formal letter writing. So this was the format which I have discussed there, like what is a formal letter? A letter written in formal language in the stipulated format for official purpose. Okay, then there are types like letter to editor, placing the order, complaint letter or applications. So I have already discussed in my previous video one example of letter to editor. Okay, so in this format we had like at the top of the letter we write sender's address, then date, then receiver's address. I have already told if you that you can write date here, and also it is correct if you are writing after receiver's address, but this if you just want to follow that only that complete format you should write sender's address के बाद ही आप डेट डालिए. बाद में भी डालते हैं तो गलत नहीं है, बट आप वैसे आप सेंडर एड्रेस के बाद डेट डाल सकते हैं. एंड देन आई हैव ऑल्सो डिस्कस द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द डेट, देन सैल्यूटेशन, subject and body of letter, and then the closing of letter. Okay, so in that video I discussed the format and one sample of letter to editor, but as many students have also asked me to make a video on some more letters like placing the order and then complaint letter, then letter of inquiry or applications. So I have made one application based this video on a writing of application. This for class 6 to 7, 6, 7, 8, but in that video you can see that how an application is written. Now see, here I am going to discuss with you the samples of this letter of placing the orders, complaint letter and inquiry letter. So here I have letter of placing the orders. Yes, I have written these letters myself and I am going to discuss these letters with you. Like students, you see we have this letter of placing the orders. Now letter of placing the orders means कि आप कोई order place कर रहे हो, किसी चीज़ को मंगवा रहे हो, ठीक है. So I have written one question as sample. See, you are the sports coach of ST secondary school. मैंने आपके साथ जब ये फॉर्मेट डिस्कस किया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन. आपको कहा था कि सिचुएशनल बेस्ड आएगा. जो अभी CBSE का जो रिवाइज्ड पैटर्न आया है उसमें है कि फॉर्मल लेटर जो है वो सिचुएशन बेस्ड होगा. मीन्स द इंफॉर्मेशन यू हैव टू यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. Okay, you have to write that name, that address which is already given in the question. Okay, so see here you are the sports coach of ST secondary school Pathankot and write a letter to MS Pioneer Sports Company Ambala. Okay, this is used for this companies या dealers के लिए ये word हम use करते हैं. प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 स्पोर्ट्स आइटम. ये स्टूडेंट्स कई बार ना देखा गया है मिनिमम ऑफ 4 आइटम्स मतलब कम से कम 4 स्पोर्ट्स आइटम का आपको ऑर्डर देना है. लेकिन जब बच्चे सब्जेक्ट में लिखते हैं या कई बार लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं वी आर ऑर्डरिंग मिनिमम 4 स्पोर्ट्स आइटम. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू मेंशन द नेम, द क्वालिटी, द क्वांटिटी ऑफ द स्पोर्ट्स आइटम विच यू वांट टू परचेज हेयर. ओके, कोई भी चीज़ जिसका भी आप परचेज़ कर रहे हो उसका नाम, उसकी क्वांटिटी, उसका ब्रांड का नाम भी आप चाहो तो इसमें मेंशन कर सकते हो. ठीक है, तो आपको मिनिमम 4 स्पोर्ट्स आइटम मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हो. अगर तो आपको दिया हुआ है उसमें कि आपको बैट मंगवाने हैं, बॉल, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप उसको यूज़ करोगे. लेकिन नहीं दिया है तो आप कोई भी स्पोर्ट्स आइटम मंगवा सकते हैं. मतलब कम से कम 4 आइटम्स होनी चाहिए, उससे बढ़ भी सकती है. ओके, with necessary details, then ask for discount also and you have to sign as Sushma और सुमित. मीन्स आप अपना नाम क्या, अगर लड़का है तो सुमित रखेगा और लड़की है तो सुषमा. ओके, तो एज द फॉर्मेट फ्रॉम द फॉर्मेट इट इज़ क्लियर. ये जो मैंने पहले आपके साथ फॉर्मेट किया कि सबसे ऊपर आता है सेंडर का एड्रेस, उसके बाद रिसीव डेट, उसके बाद रिसीवर, देन सैल्यूटेशन. हम इसी फॉर्मेट को लेकर यहाँ पर चलेंगे. सी, सेंडर कौन है यहाँ पर? ST सेकेंडरी स्कूल का स्पोर्ट्स कोच. तो सबसे ऊपर आपका जो सेंडर है वो ये हो गई. ठीक है,
Then you have the receiver, and who is then is the date, 18 July 2020. Okay, this is the correct format of writing the date. And then MS Pioneer Sports Company Ambala, ये हैं आपके रिसीवर. ये कौन है आपके? ये हैं आपके रिसीवर और ये हैं आपके दिस सेंडर. ओके, सेंडर. Now see, then comes the salutation. Dear sir. Now, after salutation, you write subject, and the subject is order for sports item. छोटा होना चाहिए, subject precise होना चाहिए, उसमें लंबा चौड़ी बात नहीं लिखनी है आपने. Then see, it is my pleasure to communicate to you that our school wishes to place an order for some sports items with your company. Okay, now list of the items along with their quantity is given below. Yes, जब भी आप order place कर रहे हैं बच्चे, तो आपको एक list, you have to provide a list in which you have to write the serial number, you have to write the name, items, which items you want to purchase, for which items you are placing the order, and then you have to also mention the quantity there. See, I have made this list and I have made this list in a box. बहुत अच्छा होगा प्रेफरेबली अगर आप एक बॉक्स बना दें, एक पूरी लिस्ट बना दें, उसके एक कॉलम में आपने लिख दिया है सीरियल नंबर, एक में आइटम, एक में क्वांटिटी आप कितना मंगवा रहे हैं, एक में आप उसकी क्वालिटी या ब्रांड नेम लिख सकते हैं. वैसे ये ऑप्शनल है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. येस, नाउ सी, मैं यहाँ पर ऑर्डर, बीइंग अ स्पोर्ट्स कोच आई एम गोइंग टू गिव ऑर्डर ऑफ क्रिकेट हैंड ग्लव्स, और क्वांटिटी कितनी है 40. यहाँ आप कोई भी ब्रांड का नाम लिख सकते हैं. देन फुटबॉल्स 20, टेनिस रैकेट्स 20, हॉकी स्टिक्स 30. मतलब मिनिमम 4 आइटम्स बोला था तो 4 भी डाल सकते हैं, उससे आप 1-2 आइटम बढ़ा भी सकते हैं. देन वॉलीबॉल्स 20 एंड देन क्रिकेट बैट्स 20. ओके, नाउ दिस इज द लिस्ट. ओके स्टूडेंट, नाउ सी, लिस्ट आपने दे दी, ठीक है, और आपने उनको बोल दिया कि दीज आइटम्स आई वॉन्ट टू परचेज. नाउ उसके बाद क्या लिखेंगे आप? सी, काइंडली, ये एक छोटा सा यहाँ पे कॉमा है, काइंडली फुल स्टॉप नहीं है, इट इज़ कॉमा. डिलीवर द ऑर्डर ऑन टाइम बाय इंश्योरिंग दैट ऑल द आइटम्स आर टेकन फ्रॉम द फ्रेश लॉट. येस, यू हैव टू मेंशन दिस थिंग्स कि सारी आइटम्स फ्रेश होनी चाहिए. पेमेंट ऑफ द एंटायर परचेज विल बी डन डिजिटली. येस, यू हैव टू मेंशन, जैसे क्वेश्चन में था कि आप नेसेसरी डिटेल दीजिए, तो आप पेमेंट का मोड भी बताएंगे. इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड शेयर द टाइम व्हेन ऑल द आइटम्स विल बी डिलीवर्ड एट आवर एड्रेस. कि अगर आप टाइम भी बता दें कि कब तक आप डिलीवर करेंगे तो इट इज़ गुड. हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई हैव जस्ट सेंड कि एक डिस्काउंट के लिए भी आप बोल सकते हैं दैट आई एक्सपेक्ट 20% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट. आप ये भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन में भी ऐसा कहा था कि आस्क फॉर डिस्काउंट, तो आप, मैंने यहाँ पे वो लाइन में स्किप कर गई, बट आप जब भी लिखें तो आप डिस्काउंट मांग सकते हैं, और अदरवाइज़ आप डिस्काउंट का नहीं भी लिखते हैं तो इट्स ओके, बट आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है तो यू कैन राइट दैट आई ऑल्सो एक्सपेक्ट 20% डिस्काउंट. यहाँ पे आप आगे लिख सकते थे, यहाँ पे हम लिख पाएंगे दैट आई एक्सपेक्ट 20% डिस्काउंट. ओके, यहाँ पे आप एक फ्रॉम यू. ओके, यू कैन राइट दिस. देन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू हियरिंग फ्रॉम यू एंड विद रिगार्ड्स. नाउ द क्लोजिंग, योर्स ट्रूली. मैंने कहा था कि जब आप नॉर्मल आप लिखते हैं तो यू कैन राइट योर्स ट्रूली और योर्स सिंसेरली, सुषमा और सुमित. ओके, जो भी आप, लड़का है तो सुमित, लड़की है तो सुषमा. स्पोर्ट्स कोच सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ST पब्लिक स्कूल और एनीथिंग. ओके, सो दिस इज द लेटर ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर. नाउ कम्स लेटर ऑफ कंप्लेन. कंप्लेन लेटर आप लिख रहे हैं, ठीक है. नाउ हियर इज द क्वेश्चन. यू आर आनंद और अक्षत ऑफ कोलकाता. यू बॉट अ वर्लपूल वाइट मैजिक वॉशिंग मशीन फ्रॉम MS इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया. ये कंपनी का नाम है, शॉप का नाम है जहाँ से आपने खरीदी है. लेक एरिया कोलकाता, दिस इज़ द एड्रेस जहाँ से आपने वो मशीन खरीदी. एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन इट वॉश्ड वेल फॉर 2 months बट सडनली द स्पिन ड्राई सिस्टम ऑफ द मशीन हैज़ स्टॉप्ड फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो मशीन आपने खरीदी, उसका जो ड्रायर है वो काम करना उसने बिल्कुल बंद कर दिया, अच्छे से नहीं कर रहा है. देन राइट अ लेटर टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया. इसी को आपको लेटर लिखना है
giving them the guarantee card number and other details regarding your complaint and asking them to attend to it or replace it. आप उनको ये बोलेंगे कि या तो आप इसे ठीक करिए या फिर आप इस पीस को ही रिप्लेस कीजिए, बिकॉज इट हैज़ अ प्रॉब्लम जस्ट विद इन 2 months उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है. Now see, sender's address 14 BC Road, Kolkata. Then is the date and then comes the date of the the address of the receiver, MS Electronics India. Okay. Now see, डियर सर एंड देन सब्जेक्ट. यस, क्योंकि बेटा ये फॉर्मल लेटर है, सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. कंप्लेन अबाउट अ वॉशिंग मशीन. सी, I bought a Whirlpool White Magic washing machine from your showroom. It was purchased with a guarantee of 2 years. 2 ईयर की गारंटी है और गारंटी का कार्ड नंबर इज़ 145 डेटेड मई 12, 2020. The machine gave a trouble-free service for only 2 months. Now the spin-dry system of the machine does not function properly. अब क्या प्रॉब्लम आई है वो आप प्रॉब्लम भी यहाँ बताएंगे. The clothes drip wet even after the spin-dry function is completed according to the machine. Yes, कि जो कपड़े आप डालते हैं स्पिन ड्रायर में तो वो वेट होते हैं, ड्रिपिंग होते हैं, उनमें से पानी नहीं सूखता है. अकॉर्डिंग टू द मशीन आपको इंडिकेशन देती है कि आप वो ड्राई कर गई है, बट वो ड्रायर काम नहीं कर रहा. ओके, नाउ ये आपने उसमें बता दिया दैट व्हाट मैल फंक्शनिंग, व्हाट टाइप ऑफ मैल फंक्शनिंग हैज़ अकर्ड इन योर मशीन. किस तरह का जो प्रॉब्लम है वो मशीन में आया है. अब ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं बतानी है, प्रिसाइज होता है फॉर्मल लेटर. सी, काइंडली सेंड योर मैकेनिक टू रिमूव द डिफेक्ट और रीप्लेस द पीस इटसेल्फ. कहते या तो मैकेनिक को भेजिए क्योंकि गारंटी पीरियड में है आपकी मशीन, तो या तो मैकेनिक को भेजिए जो उसको ठीक करे, रिमूव द डिफेक्ट करे और रिप्लेस द पीस इटसेल्फ एट इट इज़ वेल विद इन द गारंटी पीरियड, क्योंकि वो गारंटी पीरियड में है. आई होप यू विल डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट सो दैट आई मे नॉट हैव टू अप्रोच द कंपनी डायरेक्टली, कि मुझे कंपनी को ना अप्रोच करना पड़े, तो आप ही इसका मेरा जो यहाँ की प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हैं. देन योर्स ट्रूली आनंद और अक्षता, जो भी आपको इसमें दिए गए थे नेम्स अकॉर्डिंग टू यू आपने उसको यूज़ करने हैं. Yes students, so this is the letter of complaint and I think it's clear to you. Okay, now comes the letter of inquiry. Yes students, inquiry. Inquiry होता है कुछ पता करने के लिए जब आप कुछ करते हैं. ठीक है, 2 वर्ड्स होते हैं बेटा. एक वर्ड होता है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, एक वर्ड होता है inquiry. So don't get confused between these 2 words. Okay, कोई ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, एक स्लाइट डिफरेंस होता है. लेटर ऑफ इंक्वायरी, व्हेन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट समथिंग, आप किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी कोर्स के बारे में कुछ पता करना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप सेंड करते हैं, तो वो आ जाता है आपका पूछताछ टाइप. जैसे आपने पूछताछ की, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में पता करना है, दैट इज़ इंक्वायरी. तो इंक्वायरी होती है एक तरह से जांच पड़ताल करनी. जैसे हम बोलते हैं जी पुलिस इंक्वायरी बिठाई गई, मतलब पूरी जांच पड़ताल की गई. तो हम ज़्यादातर ये वर्ड जो है इंक्वायरी हम इस जगह पे लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए. ठीक है, हम इंक्वायरी वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, बट इंक्वायरी मीन्स टू इंक्वायर, आप कुछ इंक्वायर कर रहे हैं. ठीक है, ओके, नाउ हियर यू वांट टू, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं. सी, यू इंटेंड टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस एंड इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर सिचुएटेड इन रायपुर. ठीक है, रायपुर में कोचिंग सेंटर है, यू वांट टू ज्वाइन बिकॉज द इंस्टीट्यूट स्पेशलाइजेस इन टीचिंग साइंस टू क्लास 11th and 12th. देन राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इन 100 to 150 वर्ड्स. येस, यहाँ आपको वर्ड लिमिट दी गई है. येस स्टूडेंट, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना है तो इसकी वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स ही है. एड्रेस टू द एडमिनिस्ट्रेटर, आपको अब सेंडर का इसमें रिसीवर का एड्रेस दिया गया है. इंचार्ज ऑफ इंस्टीट्यूट सीकिंग क्लैरिफिकेशन. येस, सीकिंग क्लैरिफिकेशन मीन्स यू अबाउट व्हाट यू आर इंक्वायरिंग, आपको क्या पता करना है. Timings of the coaching center, duration, staff, transport and other necessary details for joining the institute. And you are Rajesh और रजनी means आपको यही नाम जो है वो इसमें यूज़ करने हैं. And your address is also given here, 2 Library Road, Jabalpur. You have to use this name and this address in your letter. और कोई नाम, कोई और एड्रेस आप यूज़ नहीं करोगी, otherwise that will be considered as mark of identification.
Okay student, now here is the letter. See, sender का एड्रेस सबसे ऊपर 2 लाइब्रेरी रोड जबलपुर. Then comes date 18 July 2020. Then comes receiver's address, the administrator, International Coaching Center, Raipur. Okay. Salutation, and after salutation comes the subject. तो सब्जेक्ट क्या है? इंक्वायरी अबाउट एडमिशन टू कोचिंग क्लास फॉर क्लास 11. आप 11th में हैं, ऐसा है, उसमें 11th या 12th आप कोई भी क्लास उसमें मेंशन कर सकते हैं. सी, हियर इज़ द लेटर. अब यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो शुरू हो रहा है. आई वॉन्ट टू जॉइन योर कोचिंग क्लास फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11. ठीक है, मैं कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहती हूँ? 11th क्लास का, इन द सब्जेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. काइंडली लेट मी नो व्हेन द न्यू बैच विल स्टार्ट एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट. अब आप इन चीज़ों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, टोटल फ़ी टू बी पेड. ठीक है, ड्यूरेशन कब तक है कोर्स की, कितना महीने आप कोचिंग देते हैं, फिर टोटल फ़ी कितनी है. ठीक है, एंड देन कम्स द टीचिंग मेथडोलॉजी. यस, किस तरह से पढ़ाया जाता है. मीन्स सिर्फ टीचर्स और लेक्चर्स होते हैं, या आपके पास प्रैक्टिकल लैब्स हैं, या आपके पास मतलब आपके पास जो पूरा इंटरैक्टिव बोर्ड है. देन व्हाट आर द टाइमिंग्स. यस, टाइमिंग्स ऑफ ईच क्लास, सब्जेक्ट वाइज क्या टाइमिंग्स है आपकी. देन मोड ऑफ पेमेंट. यस, फ़ी पे करने का कौन सा तरीका है. आप डिजिटली पेमेंट लेते हैं, मंथली पेमेंट लेते हैं, एनुअली लेते हैं, जो भी है. देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एनी. यस, क्या आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है. आई होप टू रिसीव अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई. यस, प्रॉम्प्ट रिप्लाई मीन्स कि आप मुझे जल्दी से बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन जो मैंने मांगी है वो आप मुझे देंगे. सो दैट इज़ इट. सो दैट्स इट. ओके, सी नाउ द क्लोजिंग, दिस क्लोजिंग पार्ट. Thanking you, yours truly, Rajesh or Rajni. Yes, these are the names which are given in the question itself. Now students, I think this letter of inquiry is also clear to you कि inquiry में हम इस तरह से लेटर लिखते हैं. जिस चीज़ के बारे में आपको कहा गया है, आपने पूछताछ करनी है, उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें दी होंगी, आपने उन्हीं से रिलेटेड इंक्वायरी लेनी है. फॉर्मेट वही है. ओके, देन लेटर ऑफ कंप्लेन ऑल्सो, आई थिंक इट इज़ नाउ क्लियर. एंड देन दिस लेटर ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर. ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सभी में फॉर्मेट सेम है, बस बॉडी ऑफ द लेटर में और डेवलपमेंट ऑफ द जो लेटर है उस पर यू हैव टू गिव सम दिस कंसिडरेशन. यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, जब आप ऑर्डर प्लेस करें यू हैव टू मेंशन द थिंग्स, नेम, उनकी क्वांटिटी, पूरी लिस्ट आपको देनी है. कंप्लेन में वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज़ देयर, जिस चीज़ के बारे में भी कंप्लेन है उसी के बारे में आपको लिखना है. एंड देन इंक्वायरी, जो आपको सिचुएशन है दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. जब आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको ये सिचुएशनल बेस्ड, यू विल फाइंड दीज लेटर्स सिचुएशनल बेस्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक दैट द फॉर्मल लेटर राइटिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू विद द हेल्प ऑफ दीज samples, with the help of these examples which I have discussed, each and every example. Letter to editor, letter of complaint, letter to this of inquiry, letter of inquiry, or letter of placing the order. Letter to editor I have already discussed in my previous video of format of formal letter writing with the example. Okay students, now I think it is this discussion of formal letter is very very clear to you. If you have any queries or if you want to ask some questions, you can send your questions in the comment box of my YouTube channel. And if you like my teaching and if it's really helpful to you, you can like, share and subscribe my channel also. Thank you students.